حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل 6 باب کی 9 سے 15 آیات۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ آج میں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ وہی بات کروں گی کہ خدا ہمیں ان تمام بندھنوں سے آزاد کرتا ہے جو ہمیں باندھتے ہیں، ہماری برکات کو روکتے ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کلام کے اس حصے میں ہمیں سب چیزوں میں سے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں معاف نہ کرنے سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جب میں اپنی زندگی کے گزرے برسوں پر اور دوسروں کی زندگی پر نظر کرتی ہوں، جب میں انہیں حالات میں پھنسے ہوئے، تاریکی میں گھرے ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے، غربت میں گھرے ہوئے اور بیماری میں مبتلا دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی زندگی میں معاف نہ کرنا سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ مجھے اس پر غالب آنا پڑا اور مجھے اب بھی اس پر غالب آنا پڑتا ہے، کیونکہ مقدس پطرس نے یسوع سے پوچھا کہ اسے ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنے کی مشق میں سے گزرنا ہوگا، بار بار بار۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ لگے بندھے طریقے سے ہم فوراً اس سے رہائی پالیں، اپنی زندگی میں اسے روزمرہ کے ضابطے کے طور پر اپنے رویے میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ابھی حال ہی میں نے دماغ کے ایک ماہر سرجن کا انٹرویو پڑھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا کامیاب تھا۔ وہ ایک یہودی سرجن تھا جس نے اپنے دل میں یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا تھا، اور اسے اپنے باپ کو معاف کرنا پڑا۔ اس نے نہ صرف اپنے باپ کو معاف کیا بلکہ اسے اپنے پیشے میں بھی وتیرہ بنا لیا۔ جب اس نے اپنے بھائی، اپنے باپ اور خاندان کے لوگوں کو معاف کر دیا تو وہ اپنے مریضوں کو بھی کہنے لگا کہ نازک آپریشن سے پہلے اپنے قصورواروں کو معاف کر دیں۔ اس کے آپریشن وہ دنیا کے کامیاب ترین سرجنوں میں سے ایک ہے، اور اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کسی مریض کے آپریشن سے قبل، کیونکہ یہ بہت نازک ہے، یہ ہمارے بدن کا سب سے اہم اور حساس حصہ ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو وہ شخص فوراً مر سکتا ہے یا مفلوج ہو سکتا ہے، یا ایک سبزی کی طرح باقی زندگی پڑا رہے۔ اس سے قبل کہ وہ آپریشن کے لیے جائے تو وہ اپنے مریض سے بات کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ
ये तुम्हें अजीब लगे, तुम्हें पागलपन लगे, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। क्या तुम्हें किसी को माफ करने की जरूरत है? ऑपरेशन करवाने से पहले तुम्हें खुद से सुलह की बात करनी होगी। ये सर्जरी बहुत अहम है, इसलिए मुझे ये कहने की जरूरत है कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं और आप मिलकर दुआ करें। और बेशक उसके सारे मरीज ईमान रखने वाले ना होते, बल्कि लादीन गैर ईमानदार बुत भी थे। उनमें से कुछ लोग कहते, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मेरी सर्जरी और जिंदगी का इन्हसार एक दुआ पर है? ये दीवानगी है। मैं ऐसा करने से इनकार करते हुए अपना डॉक्टर बदलना चाहता हूं। अंदाजा करें, उनकी तादाद बहुत कम थी और उसकी कामयाबी का फीसद तनासुब बहुत ज्यादा था। और सर्जरी से पहले वो उन लोगों को बुलाना यकीनी बनाता जो उसके मरीज की जिंदगी में अहम थे। वो एक से दूर रहते हुए बरसों से ना मिले थे और वो मरीज को कॉल करने पर राजी थे। वो उन्हें कॉल करके बताता कि वो उनके दोस्त का सर्जन है, क्या वो इधर आना चाहेंगे? और जब वो आते तो मैं इन्हें तन्हाई में बात करने की इजाजत देता और वो कुर्बत पाते। कुर्बत पाना बहुत अहम है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल में सोचें और दुआया अंदाज में खुदा से कहें कि वो उन लोगों को माफ करने में मदद दे जिन्होंने आपको जख्म दिए हैं, जुल्म किया है, आपसे फायदा लिया हो, आपको छोटा बनाया, आपकी तौहीन की हो, आपको खौफनाक एहसास दिया हो, जुल्म करके आपको छोड़ा हो। मैं आपसे कहूंगा, अब ऐसे ना सोचें अपने और उनके भले के लिए, क्योंकि आपको ख्याल नहीं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ दूसरों के खिलाफ रंज रखने और दिल में माफ ना करने को रखने से क्या कमी आती है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही था। जब मैं मुसलमान थी तो माफ ना करने को पसंद करती थी। तुर्की में हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके लिए मैं अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करने की कोशिश करती हूँ। हम कहते हैं, बदले की प्लेट ठंडी दी जाती है। इसका मतलब है, तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा तब करूंगा जब तुम्हें उसकी मुझसे कम तरीन उम्मीद हो, ताकि तुम्हें ज्यादा चोट लगे। मशरिके वुस्ता में ये बदले का रवैया और जहनियत है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हमारे मुल्क में अब भी खानदानों में खूनी जंगें और लड़ाइयां होती हैं। कोई जाकर जानबूझकर कत्ल करता या हादसाती तौर पर या किसी के भाई के साथ लड़ाई में, ओए तूने मेरे भाई को कत्ल किया था, मैं जाकर तेरे भाई को कत्ल करूंगा। तूने मेरी बहन को कत्ल किया, मैं तेरी बहन को करूंगा। तूने मेरी बहन की असमतरी की, मैं तेरी बहन की करूंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही रवैया और जहनियत है, और मैं इसी में परवान चढ़ी। मैं जहाँ कहीं गई वहां पर मैंने माफ ना करना ही देखा। और अब भी ये माफ ना करना कौमों के दरमियान, लोगों के दरमियान, मजहबी ग्रोहों के दरमियान सिर्फ इसलिए है कि सदियों पहले कुछ वकूअ में आया था। यहाँ तक कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अरबों और दूसरे मजहबी ग्रोह सिर्फ इस पर गौर करें, सिर्फ इस पर गौर करें। बरसहा बरस, बरसहा बरस और बरसों का माफ ना करना नजर आता है। जहां माफ ना करना हो वहां अमन ना मिलेगा। अगर आपके दिल में माफ ना करना है तो आपको इत्मीनान ना मिलेगा। अगर आपके दिल में माफ ना करना है तो आपको शादमानी नहीं मिलेगी। अगर आपके दिल में माफ ना करना हो तो आप में मोहब्बत ना होगी।
आपको रूखे फल नहीं मिलेंगे। अगर आज आप एक मसीही होते हुए किसी के खिलाफ अपने दिल में रंज रखते हैं, और ये इतना हैरान कुन है कि माफ ना करना कैसी मफलूज करने वाली बीमारी है, क्योंकि ये ऐसे दबे पांव आती है कि शायद आपको इल्म ही ना हो। और मैं किसी बड़ी चीज को माफ करने की बात नहीं कर रही, और मैं उसके बारे में बात करूंगी कि मैंने अपनी माँ को कैसे माफ किया जो बहुत जुल्म करने वाली थी। मैंने औरतों के रसिया अपने बाप को कैसे माफ किया, उसने उसे बड़ी अजियत दी और हमारे खानदान को तबाह किया। लेकिन ये थोड़ा माफ ना करना जिसका हमें रोज तजुर्बा होता है, और कोई ये हमारे साथ करे और हमारे साथ यूं करे, और फिर अचानक हम अपने दिल में इस शख्स के खिलाफ ना जानते हुए रवैया बना लेते हैं। मैंने एक मुनाद को ये कहते हुए सुना कि गरूर हमारी जिंदगी में एक सांप की तरह होता है, और मैं भी माफ ना करने के बारे में यही कहूंगी। ये दबे पांव आ सकता है। हाल ही में मैं किसी के साथ बात कर रही थी, और वो मेरे दफ्तर में वो शख्स बात कर रहा था, और जब वो चला गया तो मैंने दिल में कहा, मुझे इस वक्त इस तरह क्यों महसूस हो रहा है। मैं इस शख्स को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो भला ही क्यों ना कहे। और ठीक उसी वक्त खुदावंद यीशु ने मेरी तवज्जो मेरे दिल पर दिलाई कि मैं दिल में माफ ना करना रख रही हूं। इसलिए ये रोजमर्रा की एक मुश्किल मश्क है, और जब हम कहें मैंने उन्हें माफ कर दिया, तो ये ज्यादातर ये दुरुस्त नहीं होता। हम जानते हैं कि ख्याल तो माफ करने का है, इसलिए हम कहते हैं मैंने उन्हें माफ किया, लेकिन अपने दिलों में हम फिर भी माफ ना करना ही रखते हैं। और दूसरे लोगों को माफ करना कैसी बड़ी आजादी है। यीशु ने सलीब पर फरमाया कि इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन लोगों के लिए जिसने उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया, वही लोग जो उस पर किसी सबूत के बगैर इल्जाम लगाते थे, वही लोग जिनके साथ शायद उसने भलाई की हो और उनके खानदान में किसी को शिफा दी हो, उन्हें खाना खिलाया और भलाई के अलावा कुछ नहीं, रहम के अलावा कुछ नहीं किया, और वो उसे सलीब पर जड़ रहे थे। और यहां मसीह और खुदा का बेटा है जिसमें बदला लेने की पूरी ताकत थी, फिर भी कहा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ज्यादातर इसी तरह होता है, लोग अनजाने में मजरू करते हैं। लोग यूं नहीं करते कि आज मैंने जाकर इश्क को मजरू करना है, नहीं, लोग मजरू करते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो इस तरह पेश आते हैं, लेकिन वो दूर जाकर गुस्से, माफ ना करने और कड़वाहट दिल में रखते हैं। किसी और का कूड़ा हमारी गंदगी बनता है। खुदा चाहता है कि हमारा दिल खालिस हो, और खालिस दिल रखने की शर्त माफ करना है। अगर आप लोगों को माफ नहीं करते तो हम अपने अंदर के नुकसान को बढ़ाते हैं। मुझे फिर कहने दें, अगर आप हकीकी तौर पर माफ करने के बजाय सिर्फ लफ्जी तौर पर कहते हैं, तो उनका पहुंचाया हुआ नुकसान जारी रहता है। जिस वक्त आप उन्हें माफ करते हैं तो नुकसान भी खत्म हो जाता है। सुने, जब आप लोगों को माफ करते हैं तो वो आप पर कोई कंट्रोल नहीं रखते, वो आपको मजीद मजरू नहीं करते। जब आप उन्हें माफ करते हैं
तो आपको शिफा मिलती है। हाल ही में मुझे किसी शख्स के लिए दुआ करने के लिए कॉल आई। ये कोई पहला आदमी ना था और मैंने उसकी उसी मुश्किल के लिए दुआ की। उसकी गर्दन से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी मुतासिर थी। वो 24 घंटे पूरा हफ्ता तकलीफ में था। वो दवा खा रहा था, लेकिन दवा खाते हुए काफी अरसा हो चुका था। आप जानते हैं कि वो बेअसर होती हैं। आपका बदन उसका आदी हो जाता है और दर्द नहीं जाती। और वो शख्स बहुत तकलीफ में था। जब मैं वहां गई, मुझे बेहतर इल्म है क्योंकि अपनी जिंदगी में उसका तजुर्बा उठा चुकी हूं, और मैंने उसे बताया, पहले मैं दुआ करती हूँ, खुदावंद के हजूर में खामोश रहती हूँ। मैं चाहती थी कि खुदा मुकाशफा दे कि क्या हो रहा था। मुझे इल्म का कलाम चाहिए था। और खुदावंद ने फरमाया, ये शख्स अपने बहन भाइयों और वालिदैन के खिलाफ रंज रखता है। और मैंने उससे कहा, तुम्हारी तकलीफ की वजह, वो शख्स 15 साल से उस तकलीफ में था और वो खुदा के साथ अपनी अस्तात तक और मकसद में ना बढ़ सका क्योंकि उसके अपने दिल में माफ ना करना था। एक खूबसूरत आदमी 50 की दिहाई में एक बच्चे की तरह मजरूह था, बंद था, मफलूज था और दुखी था। वो तकलीफ में था और उस शख्स की जो भी बदनी तकलीफ थी, उसके दिल में माफी ना देने की वजह से थी। उसके पास जिंदगी में कोई खुशी और इत्मीनान ना था। और मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे दिल में अपने वालिदैन को माफ ना करने का जज्बा है? क्या तुम अपने दिल में अपने बहन भाई को माफ नहीं करना चाहते? और खुदा ने मुझ पर जाहिर किया और मैंने पूछना शुरू किया, क्या यही बात है? क्या उन्होंने तुम पर जुल्म किया कि वो बहन भाइयों में फर्क रखते थे? क्या उन्होंने तुम्हारी तहकीर की? क्या उन्होंने तुम्हारे दिल में गुस्सा भर दिया था? और तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में खुद को अपने बहन भाइयों और दूसरों से कम जाना। तुम्हें दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। जरा गौर करो, हमारी जिंदगी के एक नाकाबिले मुआफी वाक़ये ने हम पर कैसा मातमी असर किया है। मैंने कहा, यहां तक कि तुम खुदा पर भरोसा भी नहीं रखते। और उसने जवाब दिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और गौर से सुने, मैंने उसकी शिफा से पहले मैंने उसकी शिफा के लिए दुआ नहीं की थी। उस दिन मैंने उसके साथ मुत्तफिक होकर उसकी जिंदगी में माफी के लिए दुआ की। सुनो, तुम इसे खुद से नहीं कर सकते। तुमको खुदा की माफूकुल फितरत कुव्वत चाहिए। हमने माफी के लिए दुआ की। वो रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा और रोता रहा। उसने हर चीज अपने दिल से, हर कड़वाहट निकाल दी। और उसने खुदा से दुआ की कि इन्हें बरकत दे, इन्हें माफ करे और मुझे बताने दे। हमने शिफा के लिए दुआ नहीं की थी। उसने फौरन शिफा पाई। उसने शिफा पाई, फिल फौर अपनी तकलीफ से निजात पाई, सिर्फ इसलिए कि उसने खुद को मजरूह करने वाले लोगों को माफ कर दिया। आप देखें कि ज्यादातर चोट वो लोग पहुंचाते हैं जो हमारे करीबी हो, क्योंकि हम उन्हें अपनी जिंदगी में ऊंचा मकाम देते हैं, इज्जत देते हैं। हमें उनसे बड़ी उम्मीद होती है क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और वो
बड़ी आसानी से हमें जख्म दे सकते हैं। एक बच्चा वालिदैन को बहुत तकलीफ दे सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें इतना प्यार कर सकते हैं कि उनके लिए अपनी जान और हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। और सिर्फ एक लफ्ज से, एक अंदाज हमें दो टुकड़े कर देता है। हो सकता है कि आज आपको अपने बच्चों को माफ करने की जरूरत हो। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो अपने बच्चों के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मेरा ख्याल है कि जब यीशु ने कहा कि हमें कितनी मर्तबा लोगों और अपने बहन और भाइयों को माफ करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में 7 के भी 70 बार का मतलब अपने बच्चों और वालिदैन को भी बार बार माफ करना है, क्योंकि हमें रोजाना एक दूसरे से ताल्लुक रखना होता है। हम अपने बच्चों को रोजाना तकलीफ देते हैं और उन्हें रोजाना हमें माफ करने की जरूरत है। हमें रोजाना उनसे तकलीफ पहुंचती है और हमें रोजाना माफ करना चाहिए। मेरे लिए अपनी माँ को माफ करना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम था। मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें, अपने वालिद को भी माफ करना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल माँ को माफ करना था। मेरी माँ एक बेसहारा खातून थी। मैं उसे काबिले रहम कहा करती थी, जबकि मेरा वालिद औरतों का रसिया होते हुए उसको धोखा देता तो वो पागल हो जाया करती थी और मुझे बुरा भला कहती रहती। बस लोग आकर हमें तकलीफ देते हैं। लोगों को गुस्से का मसला है, उन्हें अपनी जिंदगी में किसी और बात पर गुस्सा होता है और फिर वो उसका आसान शिकार ढूंढते हैं ताकि इस दर्द, तकलीफ और गुस्से को बाहर निकाले। मैं भी ऐसी थी। बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। बस अगर आप अपने माँ और बाप के जुल्म का शिकार हैं, अगर वो आप पर गुस्सा निकालते हैं, तो फिर शायद मसला आप नहीं, तो मसला उनके साथ है। जिंदगी के लंबे सफर में वो इस सामान को अपने साथ घसीट रहे हैं ताकि जब चाहे आप पर गुस्सा निकाले। बदकिस्मती से घर में सबसे आसान शिकार बच्चे होते हैं और मैं निशाना बनी। मैं बहुत अरसा इकलौती औलाद रही। जब मेरा बाप वापस आता, अगर घर में कुछ होता तो हर कोई जुबानी कलामी और जिस्मानी तरीके से मुझ पर गुस्सा निकालता। उससे मुझे नुकसान हुआ, मेरी जान को नुकसान पहुंचा, मेरे किरदार को, मेरी शख्सियत को नुकसान पहुंचा। मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे प्यार मिले, मुझे कबूल किया जाए। जब मैं एक नौजवान लड़की बनी तो कोई भी मोहब्बत काफी न थी, मेरे लिए कोई तारीफ काफी ना थी। यहाँ तक कि मुझे इल्म है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद किसी से या प्रोग्राम को देखने वालों में से किसी से बात कर रही हूँ। यहाँ तक कि पूरी दुनिया मुझे कहती है कि मैं खूबसूरत और स्मार्ट हूँ, लेकिन एक शख्स आकर मुझ पर मनफी तनकीद करता है और मैं अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देती, लाखों बातों पर, लेकिन मैं सिर्फ मनफी बातों पर गौर करूंगी और काबिले रहम महसूस करूंगी। अगर आप इस तरह महसूस करते हैं, आपको खुदा से छुए जाने की जरूरत है। आपको आजादी के जंगजू से आजादी पाने की जरूरत है। फिर मैं मसीही हो गई और अपनी माँ को माफ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। मेरी माँ ने मेरे 30 साल का होने तक ना कभी मुझे गले लगाया, ना कभी चूमा, ना कभी गले लगाया, ना कभी चूमा, और मुझे उसकी ख्वाहिश रही। अब मैं गले लगाने वाली खातून हूँ, मुझे लोगों को गले लगाना और बोसा देना बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है कि मैं अजाला करती हूँ। खुदा मुझे इस चीज का अजाला करने का मौका देता है जिसे मैंने एक छोटी बच्ची के तौर पर बहुत चाहा था। बस मैं मसीही हो गई और मेरी वालिदा मुझे एक मुस्लिम की हैसियत से मिलने आई। हम एक चर्च में गए और वो वहां एक भी लफ्ज ना समझ सकी और वो ज़ारों के तार रोती गई, रोती गई और रोती गई। और हम घर वापस आए, हर तरफ खामोशी थी। मेरी वालिदा मेरे सामने सोफे पर बैठी हुई थी, मैं भी बैठी थी, हम बात नहीं कर रहे थे। और मुझे अचानक अपने दिल में उन्हें माफ ना करने का एहसास हुआ। मैं उनके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी।
मैंने सोचा वो तकलीफ में, नाउमीदी में बेसहारा है, वो मखलूक जिसने मुझे दुख दिया। लेकिन चूंकि माफ़ ना करना मेरे सामने आ चुका था, इसलिए मैंने खुदा से कहा, इन्हें माफ़ करने में मेरी मदद कर, मदद करके मैं इन्हें प्यार करूं, मेरी मदद कर। मैं खामोशी से खुदा से कह रही थी। अचानक खुदा ने बताया, उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो। और मैंने देखा, जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने उन्हें खुदा की नज़र से देखा। पहली मर्तबा मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें ऐसे देखा जैसे मसीह उनको देखता था। पहली मर्तबा मुझे उनसे हमदर्दी हुई। वो एक यतीम थी, कभी बाप ना था। उनकी वालिदा ने अपने खावंद को उस वक्त खोया जब वो 8 माह से थी, और फिर मेरी वालिदा पैदा हुई। उन्होंने मातम के घर में जन्म लिया था, किसी ने उनकी तरफ तवज्जो न की। वो बिल्लियों के साथ पली बढ़ी। वही उनके वाहिद दोस्त थे। वो बहुत दुखी, तन्हा और तकलीफ का शिकार थी। किसी ने उन्हें प्यार करना ना सिखाया था। उनकी शादी मेरे वालिद से हुई। उन्हें मोहब्बत मिलने की उम्मीद थी और उन्हें सिर्फ बेवफाई ही मिली। और मैंने उन्हें मसीह की नज़र से देखना शुरू कर दिया। मैं उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। वो मुझे हटाना चाहती थी क्योंकि उन्हें पसंद ना था कि कोई उन्हें छुए, और मैंने उन्हें अपनी बाहों से निकलने ना दिया और कहा, माँ मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है। और मैंने उन्हें चूमना शुरू कर दिया और वो फूट पड़ी और उनके आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। और मैंने कहा, नहीं, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मैं सारी उम्र आपको इल्ज़ाम देती रही। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको पहले माफ़ ना किया। मुझे अफसोस है। वो एक खूबसूरत लम्हा था। आप खुदा फरमा रहा है, अगर तुम आज आकर अपना दिल मुझे दे दो तो मैं ऐसा मौजज़ाती काम करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें माफ़ करूंगा और तुम्हें दूसरों को माफ़ करने की जितनी मर्तबा चाहोगे इस्ताअत दूंगा। बस मेरे पास आ जाओ।